Guys, make sure when you are taking delivery of your scooter or bike or even car, check the kilometers. कभी कभी ऐसा भी होता है कि they do take out for joy ride. ऐसा नहीं होना चाहिए guys, क्योंकि that's hard on money से आपने वो बाइक और स्कूटी खरीदा कि नहीं सर? मेरे लिए तो मैटर नहीं करती कि 100 cc है या 1000 cc. What matters for me is the rider inside my heart. By the way, carburetor which I was talking about is this one. This is the carburetor. बचपन में हम लोग पढ़े थे, जब लॉलीपॉप खाते थे, छोटे चड्डी पहनते थे, वो बात ये है कि क्लीनलीनेस इट इज गॉडलीनेस. Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Prashun Banerjee and you're watching Automania. Well guys, today I'm at a very special place. Actually मेरे लिए तो ये बहुत ही special है, क्योंकि it's a place where our bikes and scooters they come occasionally for service. Well, I'm at a service station right now. So let's go inside and see what they have on offer or servicing होता क्या है. First service, second service, third service or a general service. So let's find out. And if you haven't liked this video, please do that. If you haven't shared or subscribed to Automania, guys, do subscribe to the channel for exclusive new automotive updates. कोची, come, let's go in. Sorry, not कोची, it's Sumit. अरे यार वो नाम मैंने सबको बता दिया, तेरा वो pet name. So guys, this is one of my favorite places. I love coming to these places because यहाँ पे हम लोग को बाइक को नया जान मिलता है. ऑलरेडी मैंने बताया पहले. So well, right now I am at a service station. It's Honda service station by Vision Honda Durgapur, and boy oh boy, this is clean. This is clean. This is what it should look like. Guys, let me know in the comment section down below, what do you think about the cleanliness they follow over here. Sumit, please come here. So as you can see, the people over here, they are all working hard for our bike so that उसको एक नया performance मिले, and they do get revived to their old charm. And पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे बाइक जब लेके आते हैं हम लोग को बनाना पड़ता है जॉब कार्ड. तो जॉब कार्ड बनाने के लिए वी हैव टू कम एट दिस प्लेस, एंड डिफरेंट सर्विस स्टेशन में अलग अलग जगह रहेगा, अलग अलग सेटअप रहेगा. But in this case, we have to be here to talk to them about our bikes or the scooter, what kind of service we want. If it's a free service or a first, second, third or a general service. तो यहाँ आने के बाद हम लोग को मिल जाता है जॉब कार्ड, and then the bikes is being collected by them, and then कहाँ जाता है? वॉशिंग, धोने. यार सबसे पहले तो क्योंकि बाहर हालत बहुत ख़राब है, हो रहा है बहुत ज़ोर का बारिश, गाड़ी का हालत बहुत ख़राब हो चुका है आजकल. सो बाइक जाएगा वॉश बे पे. तो कम, आई शो यू द वॉश बे. यार मुझे ये वॉशिंग पार्ट बहुत बढ़िया लगता है यार. तो ये है, यहाँ पे होगा बाइक का वॉशिंग, बाथिंग प्लेस. यार ये मुझे बहुत पसंद है यार, मुझे घर के लिए खरीदना है अपने लिए. फिर खतरनाक प्रेशर देता है, पूरे ग्रुप का काम आएगा. पूरे ग्रुप का काम आएगा. थ्रॉटलर्स का पूरा वॉशिंग मैं ही कर लूँगा. ये खतरनाक काम होता है इसमें यार. द स्पीड, द फोर्स यहाँ पे मिलता है. अमेज़न में भी है ना ऐसा कुछ लिंक्स मिलता है शायद. यार मुझे लेना है यार, कि मेरा बाइक बहुत ज़्यादा गंदा होता है. कट. So guys, यहाँ पे मैंने पूछा, and I came to know that one of the scooters is going on for a first servicing. So many of you are asking क्या होता है first service में, कि मैं देखे बाइक दे देता हूँ शोरूम पे, वो लोग सर्विस करके छोड़ देते हैं. क्या करते हैं वो लोग? Guys, according to my knowledge, first thing is आपका इंजन ऑयल चेंज होगा. और हाँ, 500 किलोमीटर के बाद आपका इंजन क्यों चेंज होगा, well that's a different topic. I'll cover that in some other technical videos. But first things first, you have to get your engine oil changed. The new engine oil that came with the bike should be changed, guys. And next thing is चेंज जो है, चेंज का लुब्रिकेशन होगा, उसका क्लीनिंग होगा. फिर आपका जितना भी मूवेबल पार्ट्स है उसका भी लुब्रिकेशन होना है बाइक का. उसके बाद आपका स्कूटी में या बाइक्स में जो भी है इंटरनल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, वो चेक किया जाएगा. क्लच चेक किया जाएगा, एक्सीलरेशन केबल चेक किया जाएगा. एंड लास्ट का फेलो फ्रेंड ऑफ माइन, टेक्नीशियन ओवर हियर. सर इसके अलावा और क्या होता है फर्स्ट सर्विसिंग में? इंजन ऑयल, ब्रेक चेकिंग,
फिर अगर बाइक रहा तो चेन चेक होगा, चेन का चेकिंग होगा, चेन लुब्रिकेशन होगा। फिर मूवेबल पार्ट्स अगर है उसमें आप लुब्रिकेशन करेंगे। और क्या होता है स्पेशल? हाँ, तो पूरा नट ओवरऑल नट और वो सब टाइट्स होता है। और सर और ऐसा कुछ हुआ है कभी कि आप लोगों ने कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स देखा कोई फर्स्ट सर्विसिंग बाइक में? कोई नया बाइक से आया कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ? बहुत रेयर वैसा होता नहीं है नॉर्मली। हाँ, वो तो बहुत मैनो वो तो होता ही है, वो तो वंस इन अ ब्लू मून तो हो ही सकता है, अदरवाइज इट्स ऑल नॉर्मल, राइट? सो वी मेनली आर टॉकिंग अबाउट द चेन फॉर द बाइक्स, लुब्रिकेटिंग द मूविंग पार्ट्स। इंजन ऑयल चेंज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पहला चीज़ है, इंजन ऑयल चेंज करना। टायर प्रेशर चेक कर ले तो आप, टायर में लीक से या कुछ चेक कर ले तो इट्स अ बेसिक हेल्थ चेकअप मैं बोल सकता हूँ। एक इंसान के लिए जैसे इंसान के लिए हेल्थ चेकअप होता है ना, तो ऐसा हेल्थ चेकअप होता है। और उसके बाद जाएंगे हम सेकेंड सर्विसिंग पे, जो कि रहेगा और 3 से 4,000 किलोमीटर के बाद। उसमें क्या होगा, same thing will be repeated, your moving parts will be checked properly, your chains will be taken care of, and अगर आपने चलाया गाड़ी बहुत रफ और उड़ा दिया गाड़ी का ब्रेक्स, जो कि होता नहीं है 4-5 हज़ार किलोमीटर में, इफ़ यू आर नॉट अ मैड राइडर, ओके, एंड कंप्यूटर बाइक में तो होता ही नहीं है। तो सेकेंड सर्विस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिर कम्स थर्ड सर्विस और फोर्थ सर्विस विच इज अराउंड 12,000 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द बाइक। जैसे मेरा बाइक है GT 650, उसमें फर्स्ट सर्विसिंग था 500 पे, सेकेंड सर्विसिंग इज 10,000 किलोमीटर विच इज लॉन्ग गैप। सो हर कंपनी का अलग अलग रहता है। सो जो स्कूटी और कम्यूटर्स में वो डिस्टेंस कम हो जाता है, जैसे 3,000 किलोमीटर्स, 4,000 किलोमीटर्स। परफॉर्मेंस सेगमेंट बाइक होता है 10,000 किलोमीटर, जहाँ पे आपका चेंज होगा बाइक का टायर। जैसे मेरा बाइक का 10,000 में सब चला गया था, टायर चेंज होता है। फिर ब्रेक्स, तुमको पता, तुम्हें याद है ना, ब्रेक्स तो मेरा ब्रेक्स वॉज कम्प्लीटली गॉन, बट राइट नाउ मेरा रियर ब्रेक चेंज कर दिया मैंने, बट फ्रंट ब्रेक अभी भी चल रहा है इन 10,000 किलोमीटर, बट उसको भी चेंज करने का टाइम आ गया है। चेन स्प्रॉकेट यू हैव टू मेंटेन वेरी प्रॉपर्ली गाइस, बिकॉज 10,000 किलोमीटर में आप हर दिन सर्विस सेंटर नहीं आओगे यार, कैसे आओगे? चेन को हमेशा क्लीन कीजिए। चेन का क्लीनिंग किट खरीद लो, अमेज़न में मिल जाएगा, कोई भी लोकल प्लेस में मिल जाएगा। बाय अ चेन क्लीनिंग किट गाइस, क्लीन इट योरसेल्फ, lubricate it properly, get your chain tightened। अदरवाइज यार अगर चेन का लाइफ खत्म हो गया ना तो बहुत डीप होल होने वाला है पॉकेट पे। और उसके बाद थर्ड सर्विसिंग में सर, थर्ड सर्विसिंग जब होता है 10,000 12,000 किलोमीटर बाइक चल जाती है, तो क्या नॉर्मली आप लोग करते हैं, क्या मेन प्रॉब्लम फेस होता है? गाड़ी चल जाने के बाद आपका मेन सोर्स होता है कि सर गाड़ी में वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम है। अच्छा, बस हम लोग ड्राइव करके चेक कर लेते हैं। ड्राइव करके आप लोग चेक करोगे, ओके फाइन। ड्राइव करने के बाद उस हिसाब से हम लोग काम करोगे। ओके, तो मतलब आप लोग सस्पेंशन की प्रॉब्लम हो सकता है, इंजन में बात होता नहीं है नॉर्मली, बट होता नहीं है, बट डिपेंड्स अपॉन द राइडर को तो बहुत डिपेंड करता है। अगर राइडर अगर मतलब मैडली चला रहा है कोई भी बाइक, कोई भी अच्छा खासा बाइक बिगड़ जाएगा 3,000 किलोमीटर पे, वो तो हम लोग जानते ही है। तो ऊपर ही पूरा निर्भर करता है कि वो कस्टमर किस तरह से आप लोग एग्जैक्टली। सर व्हाट अबाउट दिस CVT, मतलब स्कूटी जो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, CVT रहता है, तो CVT हम लोग कितना किलोमीटर बाद चेक करते हैं? ये सर फर्स्ट सर्विस में तो नहीं होगा, नहीं फर्स्ट सर्विस में नहीं होगा, लेकिन इसको पर सर्विस कंपनी बता रहा है कि पर एक सर्विस में इसको क्लच को वॉश करके लगाने के। अच्छा, इसको एक बार ड्राई क्लच होता है। अच्छा, ड्राई क्लच में इसका जो शू होता है एग्जैक्टली वो डस्ट एक्यूमुलेट कर लेता है। ओके इसको पर एक पेट सर्विस में ड्राई तो हम लोग चेक करते हैं, क्लीन करना है। हाँ, क्लीन करना है। और रिप्लेसमेंट भी होता है, खराब हो गया तो 24,000 किलोमीटर में पूरा 24,000 किलोमीटर में। ओके, so 24,000। हाँ। So this is you talking about Honda. So Honda scooters, if you have got the CVT system, what he is recommending is after 25,000 kilometer, get it checked if it needs any kind of replacement. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें रिप्लेस होना ही है, बट अगर राइडर ने बहुत चलाया है, कंडीशन अच्छा नहीं था, तब इट माइट नीड अ रिप्लेसमेंट। एंड आई थिंक गाड़ी के बाद जब आता है, अगर आपका तबीयत खराब होता है, आप इमीडिएट जाकर डॉक्टर के पास कि दांत खराब हो गए सर प्लीज ठीक कर दो, वैसे ही गाड़ी का सेम बात है गाइस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अदरवाइज इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर मोटरसाइकिल और स्कूटर, यू नेवर नो, रास्ते में वो आपका हाल उसका आपका साथ छोड़ दे, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। सो सर ये कौन सा सर्विस हो रहा है? ये तो बहुत पुराना बाइक स्कूटी लगता है। ये एक्टिवा आई है। ये BS4 वेरिएंट है एक्चुअली।
तो इसमें तो कार्बोरेटर है होता है ना? हाँ, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर मतलब आप कार्बोरेटर खोल के उसको क्लीन भी करते होंगे। क्लीन करते हैं, हाँ। अच्छा, तो आपको तो कार्बोरेटर बारे में नॉलेज होगा अच्छा सा। सर कार्बोरेटर बोलते हैं कार्बोरेटर में कचरा आ गया, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो होता क्या है सर? देखिए, इसका फर्स्ट रीजन होता है, पहले का गाड़ी का मॉडल में फिल्टर जो लगाया होता है वो पेपर का जगह में स्पॉन्ज आता है। वो स्पॉन्ज फिल्टर आता था वो ओल्ड गाड़ी पे। अच्छा अच्छा, इसके ओके। बाद इसका पेपर बनाया गया। अब पेपर में इसको बिस्कट डाला गया। बिस्कट होने की वजह से ओके। ईयर के साथ में जो ईयर फिक्स आता था उसमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है। ओके, और पहले दांत खींचने की वजह से कार्बोरेटर में बहुत ज़्यादा तो आप बोलना चाहते हो कि जो क्लीनिंग सिस्टम हो जाता है, एयर इनटेक Air सिस्टम, इनटेक मैनिफोल्ड का डिजाइन चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, स्पॉन्ज होता था अभी पेपर का आता है, तो दैट हेल्प इन कीपिंग द इंजन क्लीन आजकल की गाड़ी में। अच्छा, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग आई केम टू लर्न फ्रॉम यू। So thank you sir for your information, and so guys these are the basic things you need to know when you're getting your bike serviced. और सर और एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरा पुराना बाइक है, मैं डिलीवरी ले रहा हूँ, मुझे क्या देखना चाहिए? क्योंकि सबको दे आर नॉट वर्किंग एज हार्ड एज यू गाइस, देयर आर मेनी अदर कंपनीज जो जल्दी जल्दी में गाड़ी छोड़ देते हैं, तो आई शुड नॉट से द नेम, बट ऐसा होता है। तो इन दैट केस एज अ कस्टमर मुझे सपोज कुछ नहीं पता है अबाउट बाइक स्कूटर, मुझे कुछ नहीं जानता, तो मुझे क्या देखना चाहिए गाड़ी में जब मैं डिलीवरी ले रहा हूँ? सर, गाड़ी में सबसे पहले तो वो जो प्रॉब्लम लेके आए हैं गाड़ी में, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बस बोला देखो भाई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप क्या रिकमेंड करते हो? तो फर्स्ट मैं बिना चला करके किलोमीटर में चेक करूँगा। अच्छा अच्छा रनिंग कितना है। अच्छा, मतलब जब दिए थे गाड़ी कितने किलोमीटर था और अभी कितना किलोमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेक श्योर व्हेन यू आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ योर स्कूटर और बाइक और इवन कार, चेक द किलोमीटर्स। यू नो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे डू टेक आउट फॉर जॉय राइड, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि दैट्स हार्ड ऑन मनी से आपने वो बाइक और स्कूटी खरीदा कि नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। तो किलोमीटर हमेशा चेक करना, हाँ 2-3 किलोमीटर हो सकता है टेस्ट राइड के लिए आपको गाड़ी को चेक करना होगा ना, 2-3 किलोमीटर वो तो होता ही रहता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फ्यूल लेवल, फ्यूल लेवल को सर हम लोग अपना जॉब कार्ड में एंट्री करवा। हाँ, अब तो यू आर एंट्रिंग इन जॉब कार्ड में आप लिखिए तो कितना फ्यूल था, तो ये तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और गाड़ी को मैकेनिकली एक बार चला के देखना चाहिए, फीलिंग अच्छा है कि नहीं, स्मूथ हुआ है कि नहीं आई गेस, तो ये सब तो बेसिक चेक करना है यार। बाइक हुआ तो चेन चेक करेंगे, ब्रेक्स तो फीलिंग चेक करेंगे। ओके, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, और बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। हम सुमित विल मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ से हम लोग को पता चला है कि अबाउट द बेसिक थिंग्स वी शुड follow when you're taking a scooter or bike for servicing, may that be first, second, third or infinite number of servicing. So if you have any question or queries regarding this, let me know in the comment section down below. I'll be more than happy to answer your query. So guys, can you recognize this bike? इसका तो सब कुछ skeleton is out. Well, it's a very interesting time. मैं आपसे बात कर पाऊँ about the parts of an engine. सुमित, ये बहुत अच्छा टाइम है लोगों को दिखाने का, क्योंकि पूरा गाड़ी खोला हुआ है सर। हाय सर, तो पूरा गाड़ी खोल दिया आपने। ये गाड़ी में गेस करते हो कौन सा है? हॉर्नेट है? नहीं, एक सेकंड, यूनिकॉर्न में स्पीडोमीटर देख के समझ भाई यूनिकॉर्न है सर। पूरा खोल दिया गाड़ी को। बाय द वे, कार्बोरेटर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस वन, दिस इज अ कार्बोरेटर एंड दिस इज अ BS4 वर्जन, दैट मींस या फिर BS3, क्योंकि BS पे इसमें कार्बोरेटर है, इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं है। दैट इज स्पार्क प्लग्स, दैट्स द इंजन केसिंग, दैट्स द स्टार्टर मोटर्स, दैट्स द सस्पेंशन। और क्या जानना है गाइस, ये तो बहुत बेसिक्स है। यहाँ पे रहता है आपको एयर फिल्टर, राइट? एयर फिल्टर रहता है, एयर फिल्टर से आपका यहाँ पे एयर जा रहा है, यहाँ पे फ्यूल यहाँ से आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्स यहाँ पे हो रहा है। अंदर छोटे छोटे जेट्स रहता है, एयर जेट, मेन जेट, पायलट एयर जेट, राइट? मेन एयर जेट, ये सब रहता है। और पायलट एयर एंड फ्यूल मिक्स होता है। आई थिंक सर पायलट जेट उसमें तो मतलब इट्स यूज फॉर लोअर स्पीड, पायलट जेट लोअर स्पीड के लिए होता है। 2 जेट रहते हैं, हाँ, छोटा जेट और बड़ा जेट। मेन जेट जो कि टॉप एंड के लिए यूज होता है, और होता है मेन एयर जेट होता है, और पायलट एयर जेट होता है जो एयर को कंट्रोल करता है। गेस थोड़ा बहुत मुझे भी पता है हल्का फुल्का। तो दिस इज वेल, दैट इज अनदर टॉपिक सेपरेटली।
one day I will open a carburetor and show you the details about the parts of a carburetor. And if you're interested to know about that, let me know in the comment section down below. By the way, कभी कभी होता है ना कि गाड़ी का RPM बढ़ जाता है, this is knob भी adjust, right? यहाँ से आप लोग RPM adjust कर सकते हो, लेकिन don't do that guys without any service or expert person with you, because गाड़ी का पूरा इंजन कैलिब्रेशन और इंजन का सब कुछ चेंज हो जाता है उससे, है कि नहीं सर? So well, sir, wish you all the best. Yes, thank you, sir. So guys, this is what I could show you about the basic parts of an engine or on a bike. And well, this place is extremely clean. I'm saying this once again because I love it. Just look at the floor. Just look at the flooring, guys. Amazing, simply amazing. Well, this is a service center by Vision Honda, the one where I was covering all my Honda videos on Honda bikes. So it's their service center. It's in Polasdia, Durgapur, and they are providing some great service. So if you're interested in some servicing and if you want to get bikes to get serviced by Honda and you are having a Honda scooter or a bike, you can definitely come here and get your bike serviced. So guys, we have a customer over here with us. So I'm going to ask him some questions. So hi sir, welcome to Automania. Sir, आप क्या काम करवाने आए थे? एक छोटा जो पार्ट्स जो है वो चेंज करना पार्ट चेंज करना आए थे. Was it paid one or under warranty? अंडर वारंटी. Under warranty, so you got it replaced fully free. Complete. yes. And this is your bike. Well, it's the Honda X-Blade. So how is the bike? How is the performance? फाइन. बहुत अच्छा है. The economic is Royal Economic is too fine. Economy बहुत अच्छा है. And sir, what about this service center, Vision Honda? What do you think? Very good service and very good behavior of the staff, supporting staff. सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छे सर. एंड आप आज ही आए थे सर्विस चेक करवाने, ये करवाने? आते हैं हम. अभी तो सर्विसिंग नहीं करना है, कुछ काम था वो करना है तो आते हैं हम यहाँ पर ही आते हैं. So you are satisfied customer. So guys, we have a satisfied customer over here. So that's the reason I'm keep saying it continuously, because in my city, in this area, we have loads number of Honda motorcycle and scooters. So if you want to get them serviced in a good manner and if you want the proper satisfaction, to do visit this place. I will give you the details in the description box down below. Well guys, I have a very important question. The question is कि कोई BS4 बाइक अगर रहता या फिर स्कूटर्स एंड अ BS6. सो BS4 तो मैनुअल होता है, इट्स एन ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी, एंड BS6 इज़ वेरी मॉडर्न. सो आई आई एम वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, एंड उसके बारे में कुछ सवाल पूछेंगे. हाय सर, मेरा सवाल ये है कि सपोज अ BS4 बाइक इज़ कमिंग टू योर शोरूम which is a old school manual one, and a new BS6 is FI technology. So how would you find problems in BS4 and BS6? आपका प्रॉब्लम अटैक करने का क्या स्टाइल रहेगा दोनों बाइक्स के अंदर? आई एम श्योर डिफरेंट तो होगा ही पक्का. BS4 में हमारा जो बाइक है, BS4 में सारा चीज़ मैनुअल होता है. तो मैनुअल होने के बाद हम लोग पहले गाड़ी का जो डायग्नोसिस कस्टमर बोलता है उसको हम लोग टेस्ट साइड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या डायग्नोसिस है. बट BS6 जो है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो खुद ही आपको बताता है कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है. जैसे ही प्रॉब्लम गाड़ी पे आना शुरू होते हैं, वो उसका डिस्प्ले पे एक MIL कोड आ जाता है, जिसको हम लोग CPU से, कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं कि कौन सा सेंसर में प्रॉब्लम है. तो हम लोग तुरंत ही उस सेंसर को चेक करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो वारंटी में चेंज हो जाता है और कुछ उसको तुरंत ही रिजॉल्व कर देते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है. ओके सर, इसका मतलब सर MIL लाइट, मतलब मैंने देखा है बहुत बाइक्स पे, मेरे बाइक्स पे भी है, एक लाइट जलता है, वो चीज़ एक हैमर का साइन या रेंज का साइन रहता है. इज दैट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? वो जो सिंबल दिखाता है वो सर्विस रिमाइंड का सिंबल है, सर्विस है, साइन है. आपका जब किलोमीटर हो जाता है, 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर के बाद वो सिंबल इंडिकेट करता है. ओके, फर्स्ट सर्विस के बाद. उसके बाद हम लोग उसको रीसेट कर देते हैं. उसके बाद आपका सेकंड सर्विस का जब टाइम आएगा, उस टाइम वो इंडिकेट करेगा. नहीं, मेरा प्रॉब्लम अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है बाइक पे और मेरे पास BS6 बाइक है, सो क्या वो इंडिकेट करेगी? नहीं, वो इंडिकेट नहीं करेगा. MIL कोड इंडिकेट करेगा. MIL कोड. सो उस कोड के थ्रू आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. solve कर सकते हो. So it's a very advanced technology guys, that's what I'm talking about. Not only Honda, all the companies right now are BS6 compliant. That means don't ever take your bike, scooty or even a car to a local mechanic or a local workshop to get it serviced. I think उसके लिए वारंटी भी void हो सकता है ना सर? वारंटी वॉइड हो जाएगा और दे हैव नॉट द एडवांस फैसिलिटी टू चेक द रिजॉल्व द प्रॉब्लम. Okay, so they don't have that advanced facilities, वो tool नहीं रहता, but I think you cannot connect extra tool from outside, you can't do that. You can't crack the code actually, which is very tough. So मेरा recommendation यही है कि शोरूम पे आके ही सर्विस करो यार.
सर्विस सेंटर में करो, ऑथोराइज जगह पे सर्विस करो, दैट विल हेल्प यू इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ द स्कूटर, है ना। तो स्कूटर का लाइफ बढ़ जाएगा और स्कूटर का मतलब आप बहुत ज़्यादा दिन चला भी सकते हो। आराम से डेफिनेटली हम लोग सर्विस सेंटर में अगर शेड्यूल से काम कराते हैं तो गाड़ी का लॉन्जिविटी बढ़ता है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि बहुत कोई मैंने देखा है कि दे डू टेक टू लोकल वर्कशॉप। हाँ, छोटा मोटा काम ठीक है, टायर पंचर हो गया, चेन टाइट करना है, वो पॉसिबल नहीं होता हर बार सर्विस सेंटर आने के, चेन टाइट करना होता है, एयर फिल्टर अगर चेंज करना होता है लेके लिए, चलो आई एक्सेप्ट दैट। बट बड़ा प्रॉब्लम्स के लिए सर्विस सेंटर इज अ मस्ट एंड डोंट एवर, आई एम सेइंग वन सेकंड, डोंट एवर लेट एनी मैकेनिक हु इज़ नॉट प्रोफेशनल इनफ एंड उसके पास वो ऑथोरिटी नहीं है टू टच योर फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम गाइस। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो मतलब कुछ भी हो जाए, आपका फ्यूलिंग जो किट है, फ्यूल सिस्टम जो है, जो F5 बाइक्स है, उसको टच मत करना कभी भी नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स इतना छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि द इंजेक्टर इज़ वेरी सेंसिटिव, द सेंसर इज़ वेरी सेंसिटिव। थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल, मतलब साइज अगर नैनो माइक्रॉन्स का भी है, दैट कैन ऑल्सो डैमेज योर इंजेक्टर, क्योंकि बहुत छोटा होल होता है ना सर, सो दैट कैन डैमेज इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस सर्विसिंग। एंड सर, आपके यहाँ पर कोई सर्विस करने आता है तो सुबह आएगा तो रात तक मिल जाएगा, शाम तक? हमारे पास अभी सुबह आके रात का वेट करने का समय नहीं है, हम लोग इंस्टेंट उनको सर्विस करके दे देते हैं। अच्छा, इंस्टेंटली मिल जाएगा, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आपका ऑफ कब रहता है, ऑफिस के मतलब बंद कर? हमारा अल्टरनेटिव है, बट हमारा वीक ऑफ नहीं है, इसलिए कस्टमर को सुविधा के अनुसार हम लोग सारा दिन, मैंने सप्ताह में 7x24 आवर हमारा रहता है। 7 दिन काम करते हैं आप लोग, 7 days a week, 5 दिन काम करने में मेरा हालत ख़राब होती थी पहले, ये लोग 7 दिन काम कर रहे हैं गाइस। इट्स अ ग्रेट थिंग, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑटोमेनिया। आई एम श्योर दिस सर्विस विल प्रॉस्पर और बहुत अच्छा जाएगा फ्यूचर, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अनदर पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, बचपन में हम लोग पढ़े थे, जब लॉलीपॉप खाते थे, छोटे चड्डी पहनते थे, वो बात ये है कि क्लीनलीनेस इट इज़ गॉडलीनेस। ये बात क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग पढ़े थे ना, पर लोग भूल जाते हैं, जब जितना टाइम होता है लोग भूल जाते हैं। ये फ्लोर मैंने देखा आप लोगों का, सुमित एक बार ये फ्लोर दिखाओ, यहाँ पे बाइक सर्विस हो रहा है, ये फ्लोर दिखाओ। दिस क्लीनिंग, दिस मतलब सर्विस, मतलब मुझे पता है कि गंदा होता है, ऑयल गिर रहेगा इधर उधर, सामान इधर उधर रहता है, बट ये क्लीनिंग इज नेक्स्ट लेवल क्लीनिंग एंड द प्रोटोकॉल दे आर फॉलोइंग, दे आर सैनिटाइजिंग ऑल द व्हीकल्स फॉर बिफोर सर्विसिंग एंड दिस इज़ आई थिंक द स्टॉक में ऑलरेडी दिखा दिया है ऊपर है, या भी शायद मूविंग पार्ट्स यहाँ पे रहता है ना, सो स्पेयर पार्ट्स, मूविंग पार्ट जो रहता है यह भी यहाँ पर रहता है। सो सर, दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि मैं भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ एंड बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, यू नो, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी इन दिस काइंड ऑफ मशीन्स मेरे लिए तो मैटर नहीं करती कि 100 cc है या 1000 cc। व्हाट मैटर्स फॉर मी इज अ राइडर इनसाइड माई हार्ट। सो ऑन दैट नोट इट्स टाइम टू एंड द वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो विद सम न्यू automotive or technical content. Till then, as I always say, wear your helmets while riding, wear your seat belts while driving, and never drink and drive. This is Prashant Banerjee. You're watching Automania. Signing off. Ta-da!